Temple town Ayodhya decked out. Bhajans echo across Ayodhya. CM Yogi oversee preparations. Grand event invites scent. Festive and spiritual fervor peaks. Mega Bhumi Puja countdown. All right, ladies and gentlemen, welcome to this special edition of 6 p.m. Prime Ground Report, which is coming to you live from the temple town of Ayodhya. We are at the Karyashala. For the last many years, this has been a center where a lot of stones from all across the country, all the people, those who had their faith, their trust in Lord Ram, have been sending these bricks, have been sending these pillars to be carved, which are now going to be used after 5th of August, when the groundbreaking ceremony of this entire temple, in fact, is done by the Prime Minister on August 5th. We'll be getting you the minute-by-minute update and the ringside view, the biggest coverage here on India Today. I'll be live and we'll be bringing you every single day at 6 p.m. Prime, in fact, from this very place. Now, this will be a very, very momentous occasion as the Prime Minister would come, and entire town of Ayodhya is getting ready to put its best foot forward. Ayodhya has been painted in yellow. Ayodhya is ready to welcome the Prime Minister and the entire world to see this historic moment. Take a look at how preparations are being done in the ancient town of Ayodhya. The countdown to Ayodhya's biggest celebration has begun. The 3-day puja that kicks off the Bhumi Pujan for construction of the Ram temple has begun. The holy rituals were initiated by the Raja of Ayodhya. भगवान श्री राम की कुलदेवी माँ बड़ी देव काली का भी पूजन किया। जैसे ही गणेश लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई गौरी गणेश जी परिसर में, उसके बाद मैंने ये पूजा किया है, क्योंकि कुल देवी का पूजा किसी भी उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत ही आवश्यक है। The holy city is gripped by festive fervor. The whole area is being painted yellow. आप देखिए वहां से लेकर पूरी अयोध्या भगवा पताका में रंगा हुआ और पूरी अयोध्या पीले रंग में सराबोर। तो पीले रंग का कई कारण है। एक कारण आप देखिए वहां से जब देखेंगे तो आपके नेत्र जो है सुखमय हो जाएगा। Ahead of the Bhumi Pujan, the temple town will reverberate with Shanknaad. 11,000 बार शंखनाद भूमि पूजन के पहले होगा, 1.25 लाख शंखनाद मंदिर निर्माण के पहले होगा। हम ऋषि शंख महाराज जी के वंशज हैं। Paintings depicting the life and times of Lord Ram are being put up across Ayodhya. The city is getting a total makeover. तैयारियां हो गई हैं, बाकी की तैयारियां हो रही हैं। देश के मूर्धन्य महात्मा संत बता रहे हैं और मोदी जी और योगी जी तो रहेंगे ही। इसके अलावा देश के महान संत कृपा करके आ रहे हैं। बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन होगा। The UP government is going all out to make the ceremony a grand success. यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। Chief Minister Yogi Adityanath visited Ayodhya on Monday to take stock of the preparations. आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं।
स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई कोताही न बरती दी जाए, ये हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ तैयारी की है। The first invitation to the Bhumi Pujan has gone to Iqbal Ansari, the Muslim petitioner in the Ayodhya case, in what is being seen as a message of peace and harmony. पूरे जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया, इसलिए हम मुसलमान है का हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं। सवाल आज हमें ये जो कार्ड मिला है, अयोध्या धर्म की नगरी है और हमारे यहाँ जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है हिंदुओं में, वो बरकरार है। With Ankit Tyagi in Ayodhya, Bureau Report, India Today. So this entire, in fact, preparation being done, it's just now tomorrow. 1 day is left and the Prime Minister would be here. This is something that a lot of people in the country have been waiting for, the Ram Janmabhoomi Temple. Joining me on the broadcast this evening, and I will start from my left, Mr. Abhay Pratap Singh. He's a political activist who is with us this evening. Raju Das, a very well-known face here on the show. He's the Mahant of the Hanumangadi Temple. I also have on my right Nusrat Qudusi. He's an activist leaning to the Samajwadi Party. Was also one of the litigant in the CBI case and a witness as well in the Babri Masjid demolition case. We also have Deepak Kumar, a political activist leaning towards the Congress party. Before, in fact, I start with my guest, I just very quickly want to go across to my colleague Aishwarya, who is in Ayodhya as well, just to bring you a quick sense of how and what did Yogi Adityanath do here when he came for the inspection. Aishwarya, a quick inspection by the Chief Minister of Uttar Pradesh. He would also be under a lot of pressure to make sure that Ayodhya puts his best foot forward, and politically as well, it is going to be a big event for him when the Prime Minister lands here day after. Well, definitely, and we did see, in fact, let me tell you that Chief Minister Yogi Adityanath was here for almost 3.5 hours. And he went to every place possible, and he was accompanied by the district magistrate Anuj Jha. Both of them were at every spot possible to make sure that they get a grip of what's happening around Ayodhya. Quickly, I'll tell you, on one hand, you have the beautification which is taking place. As you can see, there are people who have started painting the murals, painting the idols. On the other hand, you have people who are now making sure that because the country is dealing with a pandemic, all the precautions are in place. Who would have thought, Ankit, some time back that if you wanted to enter a temple, you had to get your temperatures checked. But this is the reality of Ayodhya today. Those are the people who are doing thermal screening of all the devotees who are coming inside the temple. In fact, let me also tell you, numbers are being taken down just in case people figure out later that someone who visited the temple was COVID positive. Aishwarya, thank you for joining us. Politics and Ram Temple have had a very, very long-standing togetherness, if I may call it. This was an issue which was political in nature. Political fortunes were made and broken because of the Ram Temple issue. And even today, Digvijay Singh of the Congress party has been raising the question on the Mahurat of the Ram Temple groundbreaking ceremony, specifically invoking the fact that the Home Minister, Chief Minister, several dignitaries, those who have fallen sick to COVID-19, are because of the inauspicious Mahurat of, in fact, the Ram Temple groundbreaking ceremony. He also asserted Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath should not join the Ayodhya Bhumi Puja. Several BJP leaders, including Shivraj Singh Chauhan, slammed Digvijay Singh, saying the Congress has never accepted Lord Ram and the party is making noises when the construction of the temple is just about to begin. हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जो कि भादों में आता है उसमें क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने पूरा हमारे वेदों से पूरा उसका उल्लेख करते हुए और ज्योतिषाचार्य के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको भेजते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे डाला, उन्होंने भी अपने फेसबुक पे डाला। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कोई पंडित तो हो नहीं गए,
ये काम करना है, निकालना, मुहूर्त निकालने का काम ये ब्राह्मणों का है, ज्योतिषी का है। और किसी को अगर कोरोना हो जाए, किसी को कुछ हो जाए तो इसका मतलब क्या मुहूर्त खराब है? राम मंदिर का मुहूर्त अपनी जगह है और लोगों के स्वास्थ्य अपनी जगह है। इस प्रकार की शरारतपूर्ण बयानबाजी करना इतने बड़े नेताओं को शोभा नहीं देता। ये तो बहुत सोच के 5 अगस्त का शुभ दिन रखा गया है और मोदी जी बिना मुहूर्त के कुछ करते ही नहीं है। चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे मंदिर का मामला हो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, न कोई झगड़ा, खून का एक कतरा भी कहीं नहीं गिरा। इससे बढ़िया मुहूर्त कुछ और हो नहीं सकता। कोई धार्मिक यज्ञ हवन होते थे, अच्छे काम होते थे तो आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा के रूप में उपस्थित होती थी। कमोबेश यही काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जितने से अच्छे से समझने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, ऑल राइट, दीपक कुमार जी ये बताएं, दिग्विजय सिंह तय करेंगे मुहूर्त? देखिए, कहाँ के पंडित हैं वो? पंडित होना न होना बात नहीं है। बात है कि हमारा आस्था है सनातन धर्म में, हम राम को मानते हैं। राम ने भी उस सनातन धर्म को, उस वैदिक धर्म को पालन किया था। राम ने भी जब रावण के ऊपर लड़ाई करने गए थे तो वहां ने शिव का पार्थिव लिंग बना के रामेश्वर की स्थापना करके विधिवत जाके प्रयास किया था। उसी प्रकार से मुहूर्त का भी उन्होंने इंतजार किया था। चातुर्मास ऋषि मुख पर्वत पर किया था, जहां वाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी। तो इससे प्रतीत होता है कि राम भगवान ने उस सनातन, उस वैदिक काल की परंपरा को फॉलो किया था, उसका अनुकरण किया था। आज उनके मानने वाले कहते हैं राम का नाम लेके आप कुछ भी करेंगे। भैया ये कहां तक जाए? जब जो हमारा आदर्श है, वो जो कहते हैं हमें उस रास्ते पे चलना है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अंकित जी, ऐसे नहीं है कि आपका जब मन करा पूजा कर लेंगे, जब मन करा आप कहेंगे कि मंदिर बना देंगे। पर ये कहां तक की समझदारी है कि ये कहने लगे कि जो नेता हैं वो बीमार हो रहे हैं क्योंकि गलत मुहूर्त में हो रहा है? इस तरीके की मतलब ये साइंटिफिक सोच है क्या? लोग क्या कोविड-19 से इसलिए ग्रसित हो रहे हैं क्योंकि मुहूर्त ठीक नहीं है? तो पूरे दुनिया का मुहूर्त ठीक नहीं है तो सब काम रोक के घर में बैठ जाएं लोग? इस पे मैं एक सवाल करता हूं। मैं सवाल किया, आपने मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन के आए थे, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई थी, अचानक से सस्ता होने लगा था। मोदी जी ने कहा था देखो मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, अच्छे दिन आ गए, तेल का कीमत कम हो गया पूरी दुनिया में। समझ नहीं आ रहा मुझे कहां ले जा रहे हैं। मैं एक सवाल किया क्या कि अगर कोरोना हो गया, प्रधानमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा तैयारी कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रखी है, क्यों कोरोना हो जाएगा? आपको बैठ के और दिग्विजय सिंह को बैठ के तो बल्कि ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, उनकी कामना ये रहे कि देश के लोग स्वस्थ रहें। आप कह रहे हैं आएंगे कोरोना हो जाएगा, ऐसी मतलब राजनीति में यहां तक आ जाएंगे क्या? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई थी? मुझे तो मैं बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई। राजूदास जी कौन करेगा मुहूर्त? कौन तय करेगा? अब वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य भी नहीं आ रहे, बहुत सारे जो संत हैं उन्होंने भी कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि सबको कोरोना इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुहूर्त ठीक नहीं है। अभी दिल्ली के मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता को बुरा लग जाएगा जब मैं सही बोलूंगा। यही कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है नहीं कांग्रेस के वैसे। भैया बड़े भाई सुनिए, प्लीज सर सुनिए। देखिए महोदय, विगत इतने संघर्ष के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद मुझको किसी ने राम जन्मभूमि एहसान में नहीं दिया। यही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने हल्फनामा दिया। यही जो स्वरूपानंद जी की बात करते हैं, स्वरूपानंद जी के समय में रामालय ट्रस्ट बनाकर इस मामले को कांग्रेस सरकार में हल करने के लिए कहा गया था, लेकिन स्वरूपानंद जी राजनीतिक चक्कर में पड़ के धन अर्जन के चक्कर में वो भूल गए। और सुन लीजिए महोदय, हंसिए मत, सुनिए आप ही सुनिए, आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं जिन्होंने राम सेतु को नकारा, जिन्होंने राम को अस्तित्व को नकारा। आप ही के लोग हैं जो डे टू डे सुनवाई की हम लोग मांग कर रहे थे। आपके जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ थे उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी इसका श्रेय ले लेगी, इसके नाते सुनवाई ना हो। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग से क्या बात करना? आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि अगर मुहूर्त ठीक नहीं, जिन संत ने वो कांग्रेसी संत हैं,
नहीं तो फिर ये कहेंगे आप भाजपा ही संत हैं। नहीं, सुनिए संतों में भी भाजपा ही कांग्रेसी हो जाएगा। मैं कहाँ कहा भाजपा कांग्रेस, मैंने कहा उनको कांग्रेस सरकार ने रामालय ट्रस्ट बनाकर इस मामले को हल करने के लिए कहा था, लेकिन वो हल नहीं कर पाए। यही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने इतना दिनों तक राम जी को टेंट में रखा। मैं तो कह रहा था डे टू डे सुनवाई करो, लेकिन ये हल्फनामा दे देते थे, राम का कोई अस्तित्व नहीं, तो राम सेतु कैसा, राम जन्मभूमि कैसा। अभय प्रताप सिंह जी, सुनिए पहले मेरी बात को सुन लीजिए, बता दीजिए। मुझको राम जन्मभूमि स्थान में नहीं मिला। आपने सीधे सीधे कहा भगवान राम से, राम खुद पार्टी बने, जनता के अदालत के बीच में आए और उन्होंने प्रमाण दिया कि हाँ मैं अयोध्या में जन्म लिया, दशरथ का पुत्र हूं, फिर भी आप नहीं माने। सारे अभय प्रताप जी, आप भाजपा समर्थक हैं। भाजपा के कई नेता पापड़ खिलाकर, गो करोना गो कराकर और पता नहीं क्या क्या कहकर कोरोना भगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि कोरोना हो ही इसलिए रहा है क्योंकि राम जन्मभूमि का जो टेम्पल है उसका भूमि पूजन का समय गलत है। अमित शाह को खींच लिया, लपेट दिया, कह रहे हैं वो भी बीमार इसीलिए पड़ गए। ये कोई विषय नहीं, क्योंकि ये तो इतने हिंदुओं का आस्था का विषय है। और कोरोना तो एक महामारी है जो चाइना से आई है, तो उसके लिए ना तो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं और ना ही हमारे वरिष्ठ नेता लोग। इसकी ये कहना तो एकदम कतई उचित नहीं है कि इस मुहूर्त की वजह से सबको कोरोना हो जा रहा है। ये तो प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण होने आ रहा है और प्रभु श्री राम आदर्श हैं हिंदुओं के। नुसरत कुद्दूसी साहब, अब किस बात का विघ्न डाल रहे हैं? कांग्रेसी आ रहे हैं, वो भी विघ्न डाल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले यहाँ की कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए। इन सब चीजों से कुछ खास नहीं होगा जो कहते फिर रहे हैं बार बार। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये कानून व्यवस्था आप यहाँ पर देखिए क्या हाल हो गया है। एकदम किसी भी तरीके से कहीं पर भी 30 लाख रुपया मांग लिया गया, वहां कानपुर पर कुद्दूसी साहब, कोर्ट के केस के बाद ऐसा नहीं लग रहा था? इकबाल अंसारी को ये बुलाया है कि देश में अब तक राम मंदिर का जो मुद्दा है उसे राजनीति के हिसाब से या हिंदू मुस्लिम के हिसाब से बंटवारे वाला मुद्दा करके देखा गया। कोशिश तो अब ये हो रही है कि उनको बुलाकर एक देश में एक का जाए संदेश। बहुत तरह के धर्मगुरु आ रहे हैं कि एकता का संदेश जाना चाहिए। अब ये सब इस समय, वो भी बस 24 घंटे से कम समय रह गया है, उसमें भी अब इस तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई हो गई। इन्होंने हमारे संतों को बांटने का काम शुरू कर दिया। कौन भाजपाई है और कौन कांग्रेसी संत है, यानी संत का अब कौन सा कांग्रेसी है संत ये बताएंगे, कौन सा भाजपाई है संत ये बताएंगे। क्या बात करोगे? अपने हिसाब से मामला कर रहे हैं। पार्टी से बिलोंग करते हो जो अयोध्या में कत्लेआम हुआ, हजारों राम भक्त, सैकड़ों राम भक्त। आप देखोगे कि हनुमानगढ़ी चौराहा के पास में शहीद गली है, आप देखोगे राम की पैरी पे रिकॉर्डेड, मैं बात बता रहा हूँ, कोई जवानी मैं जैसे आप मांगते हो एविडेंस, साक्ष्य प्रमाण के आधार पर ये देश फैसला देता, आस्था से नहीं चलता है, उसी के अनुरूप मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्डेड है कि कत्लेआम हुआ, इनके पार्टी के लोगों ने कराया। उसके बाद क्या कहा पता है? जो निहत्थे राम भक्त थे जिनके झोली में लैया दाना और आटा था, उससे इनके पुलिस वालों को खतरा था, उसके बाद गोली चला दिया। ये तो बताएं, देखिए, सुनिए, अरे ये तो बताएं कि दिग्विजय सिंह करें तो राजनीति राम पर, और आप राम के नाम पे चुनाव भी लड़ जाएं तो वो राजनीति नहीं। देखिए, दिग्विजय सिंह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार वो भगवा साधु संतों को क्या कहा पता है? इसमें कहा कि भगवा आतंकवादी होते हैं, जो भगवा कपड़े पहनते आतंकवादी होते हैं। आज तो देखिए, जब हम संघर्ष के साथ राम राजनेता तो होते हैं भगवा वाले, संघर्ष के साथ मैं मुझको ये राम जन्मभूमि की मुकदमा जो मैं लड़ा हूँ, एविडेंस साक्ष्य प्रमाण के आधार पे आपने दिया, कोई एहसान आपने खैरात मुझको नहीं दिया। और जो कुत्सी साहब कह रहे हैं अब तो ये बदल गए, यही जगह है महोदय, आप भी मौजूद थे, कुत्सी साहब थे, कहा करते थे कि मुझको कोर्ट जो आदेश देगा मानूंगा, फिर भी ये कहा करते थे कि बाबरी मस्जिद बनेगी। और इनके आका लोग अभी भी कहते हैं, सदन में हैं, बोलते हैं कि मेरे खानदान, मेरे वंशज, मेरे बच्चे को 400 वर्षों तक बताऊंगा। मुझे नहीं पता ये बाबर के वंशज है, ये क्या बात करेंगे? ये बाबर के औलाद है, ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? आप इस तरह की बात क्यों करेंगे? भाई बाबर की औलाद है, कैसे आप बात करेंगे? क्यों? उन्होंने लगातार देशों को बदलाया, भाषा का नियंत्रण। ये बाबर के वंशज है। अरे राजूदास जी, संत हैं। बताया था बाबर एक शराबी था, बाबर एक आतंकवादी था, एक लंबी सांस ले। आप देखिए रामदेव बार बार कहते हैं गुस्सा न करें, लंबी सांस ले। रुक जाइए। अरे कुद्दूसी साहब, एक मिनट, हमारे चैनल पे हमारे चैनल से इस तरह से डिबेट नहीं होगी। एक दूसरे पे चलाने से क्या फायदा होगा? कोर्ट ने कर दिया फैसला, अब काहे को बाबर तक लेके जा रहे हैं? अरे भाई ये बताएं,
दिग्विजय सिंह को क्या परेशानी है? कमलनाथ तो वहां पे कह रहे हैं कि मैं आज से हनुमान पाठ करा रहा हूं। कांग्रेस का समझ में नहीं आता कि हिंदुत्व को लेकर वो साथ चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते, या फिर थोड़ी कंफ्यूजन कांग्रेस में मध्य प्रदेश में इसलिए है क्योंकि बाय पोल्स होने वाले हैं। 26 सीटों का चुनाव है। कमलनाथ जय श्री राम और हनुमान जी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह मोदी जी के पीछे पड़े हुए चुनाव लड़ना चाहते हैं। अंकित जी, सबसे पहले मैं राजू महाराज जी को बोलूंगा, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो मक्खन के समान होता है, उनको क्रोध शोभा नहीं देता है। और संत को संत पे आक्षेप लगाना, क्रोध नहीं है, पे पीड़ा है। पैसे हजारों राम भक्त की कुर्बानी है महोदय। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, हजारों राम भक्तों की कुर्बानी है। प्रवक्ता नहीं है भाई, बन लीजिए, वो तो चाहते हैं प्रवक्ता बनना। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, लाखों राम भक्त जब अयोध्या में मारे जा रहे थे तो आप खुशियां मना रहे थे। जिन पार्टी को शोभा नहीं देता कि संत के ऊपर आरोप लगाए। सुन लीजिए राजू दास जी, एक एक करके बोलेंगे, समझ में आएगा ना, उनको भी समझ में आएगा, जनता को भी। सारे एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, कैसे समझ चलेगी? फटाफट निपटाइए बात। राजू महाराज को पूरे आदर के साथ सुना और प्रार्थना करूंगा कि मेरे को 10-15 सेकंड सुन ले बड़े आराम से। तो मैंने कहा कि संत का जो हृदय है मक्खन के समान है, इसमें भाजपा कांग्रेस ना करें आप संतों के साथ, क्योंकि संतों की तपस्या के साथ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है राम मंदिर बनाने में भाजपा का, मोदी का कोई योगदान नहीं है, राजीव गांधी का योगदान है, नरसिम्हा राव का योगदान है और महंत नृत्य गोपाल दास के एक जो शिष्य है कमल ने कहा है। अरे मुसलमान कौम के मानने वाले मुसलमान भाइयों, देखो तुम्हारे पैरोकार किस हिसाब से। अगर सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी का है तो कपिल सिब्बल क्यों गए थे कहने कि भैया राजनीति चुनाव के बाद होना चाहिए, टाल दीजिए पूरी हियरिंग को, चुनाव के बाद 2019 चुनाव के बाद करा लीजिए। अगर इतना ही आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास था, इतना अगर कांग्रेस क्रेडिट लेना चाहती थी कि हमने कराया शिलान्यास, राजीव गांधी ने कराया शिलान्यास, तो खड़े होते ठोक कर। देखिए इस देश में तो आप लोग डर गए। अब नहीं, इस देश में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हिंदू मंदिर पे, बाबरी मस्जिद पे झगड़ा हुआ, राम मंदिर पे झगड़ा हुआ, सर्वविदित है। मामला कोर्ट में गया, अब खत्म हो गया। तो कोर्ट में जब गया तो कोर्ट में सबूत मांगता है। अब तो खत्म हो गया ना। अब तो खत्म हो गया ना। तो अब किस बात का विघ्न? मतलब अब कोर्ट से अगर नहीं, अब कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो कमलनाथ ने तो स्वागत किया है। कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो अब आप मुहूर्त पे आ जाएंगे। मुहूर्त में नहीं, ये तो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। चाहे कोर्ट हो या मुहूर्त, अड़ंगा जरूर लगाएंगे। अड़ंगा क्या है भैया? कांग्रेस की सनातन धर्मी हो, आप हिंदू धर्म को मानते हो, भगवान राम आदर्श है और आप बनाए वेदों नहीं करेंगे, शास्त्र का सम्मत काम नहीं करेंगे। आपकी सरकार थी तो आपने तो मुकदमे को लगने सुनने ही नहीं दिया, आपने नंबर ही नहीं लगने दिया। कोर्ट पे राम मंदिर का फैसला है, आप लोग तो खाली उसको आगे बढ़ाने का काम किया। कोर्ट पे दबाव तो आप लोग भी दे रहे थे कि सुनिए मत चुनाव से पहले। कोर्ट पे दबाव दिया क्या? कोर्ट पे दबाव दे क्या? तो लिखा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट ने तो तय कर दिया, आप लोग आगे क्यों नहीं निकल पा रहे? देखिए बात इतनी सी है, शादी होनी है लड़की की, जैसे घर पे मुहूर्त निकलता है, थोड़ी ना होता कि लड़की भाग के शादी कर लेगी। भगवान राम का मंदिर है, तारीख निकालने के लिए भगवान राम के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है क्या? के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है। महोदय सुन लीजिए, और मंदिर बनने के लिए मुहूर्त क्या है? अभी चुनाव आ रहे हैं आपके 3 राज्यों में, इसकी वजह से आप चाहते हैं कि भगवान राम के नाम पे एक आस्था का ट्रम्प कार्ड खेलेंगे और राम राम करेंगे। उसका जवाब लेता हूँ, उसका जवाब लेता हूँ। पहले ये बताएं, भगवान राम को आवश्यकता है क्या? देखिए ऐसा है मुहूर्त की कि अभी कुछ देर पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता तमाम बोल रहे थे, स्वरूपानंद जी महाराज बोल रहे थे, संत हैं नवनीत, अभी इन्होंने कहा संत हृदय नवनीत समाना, ये अच्छी बात है ऐसा। लेकिन महोदय आप बता दो कि इतनी पीड़ादायी में आप देखो, ऊपर से नीचे तक भगवा वस्त्र पहना हूं, आज ही मैंने बनियान बदला है, जबकि प्रभु श्री राम को साल में एक बार, जब रामनवमी आता है, भगवान राम की जन्म होती थी तो साल में एक बार वस्त्र बदले जाते थे। आप तो तीसरे दिन बनियान बदल लेते हो, साल में एक बार बदला जाता था। तो इसके नाते मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप नाराज मत हो, मुझको भी समय दो। कहने का मतलब है भगवान श्री राम के लिए किसी भी प्रकार की कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात, एक किसी वर्ण के नहीं, एक किसी जाति के नहीं, एक किसी धर्म के नहीं, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, सबरी के मीठे बैर भी खाए और गिद्धराज जटायु को भी गले लगाया और निषादराज गोह को भी अपने साथ ले चलने का भगवान ने काम किया। तो आपने अच्छा सिला दिया अभय जी, उनको इतना दिन तक टेंट में रखा और आज प्रमाण मांग रहे हो, जब आदेश आ गया। इसलिए थी शायद सबको साथ लेके, इसलिए नहीं चल पाए सारे समाज को। और कोविड-19 का, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अमित शाह जी खुद ग्रसित हो गए हैं,
येदियुरप्पा जी ग्रसित हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनको कोरोना हो गया है। ऐसे टाइम में क्या प्रधानमंत्री, जब हम अभी भी जो हमारी गाइडलाइन आई है, गाइडलाइन कहती हैं कि किसी भी तरह का बड़ा रिलीजियस फंक्शन नहीं करना चाहिए, ऐसे में क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री को इस तरह का फंक्शन ये रिलीजियस फंक्शन नहीं है, तो भगवान की न्यू की पूजा है, जिससे प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है, मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे। सुनिए, अरे उनको जवाब देने दीजिए, फिर आप उनके स्वर में स्वर मिला दीजिएगा और थोड़ा उनके स्वर में आ जाएगी। कोविड को देखते ही इसीलिए प्रतिबंधित किया गया है कि समस्त किसी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को इससे इसीलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि कोविड है, इसीलिए माननीय खाली प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पर ये बताइए कि सुब्रमण्यम स्वामी भी यही बात कह रहे हैं, क्या उमा भारती, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले किया इस पूरे आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन में, कुछ समय इंतजार कर लेते, कोविड का भी थोड़ा सा काल निकल जाता, उनको भी बेचारों को मौका मिल जाता यहाँ आने का। उन लोग या जब से प्रधानमंत्री जी आए तब से किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, सबकी जरूरत, सबका आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, सहयोग भी है, आस्था तो उनकी भी होगी ना। बिल्कुल है, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए था। उन लोग लाइव हम लोग से यहाँ से जुड़ेंगे, पूजा से उन लोग भी कनेक्टेड रहेंगे। भगवान के साथ भी टेक्नोलॉजी आ गई। राजू दास जी, आप भी तो आगे बढ़े हैं। कहाँ बात आप भी कर देते हो, तुरंत दो मानक अपना लेते हो। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारा बंद है, गिरजाघर बंद है। ठीक है, हमने भी फॉलो किया। हनुमानगढ़ी में लाखों भक्त, हजारों भक्त डेली दर्शन करते थे। हमने सोशल के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों से अपील किया, एक भी भक्त नहीं आ रहे थे। लेकिन यही लोग हैं जो कहते थे अयोध्या आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और ये इसके नाते देर कर रहे हैं क्योंकि आने वाला चुनाव है। और इसका फायदा, तारीख बताएंगे पर कोरोना में ही बताएंगे क्या? नहीं, सुनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और 200 की संख्या जहां लाखों राम भक्त आना चाह रहे थे, हजारों राम भक्त अयोध्या में हैं। आप जा रहे हैं? क्यों? जिनको ट्रस्ट के लोग बुलाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आज 1.5 घंटा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे जी हनुमानगढ़ी पर जी, और उनसे जो हमारी वार्ता हुआ, बैठकर साधु संतों के साथ मीटिंग किया। उन्होंने कहा कि राजू दास जी, पहले हनुमानगढ़ी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और बहुत सौभाग्य की बात है। कहा जाता है आपका टेस्ट हो गया, कोरोना का नहीं हुआ, ये बहुत जरूरी है, बता दीजिए। जी, कोरोना टेस्ट हो गया हम लोगों का, सब ठीक ठाक है, एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त। लोगों से मिलेंगे तो नहीं जब तक प्रधानमंत्री जी आने वाले? नहीं, देखिए, सोशल डिस्टेंस बड़ी जिम्मेदारी है, दिग्विजय सिंह छोड़ेंगे नहीं अगर बाद में पता चला कि आपको हो गया कोरोना। सोशल डिस्टेंस का हम पालन करेंगे। हमको कोरोना इसके नाते होगा क्योंकि हम लोग लगातार लोगों की सेवा में हैं। और देखिए, दिग्विजय सिंह घर में बंद रहते हैं, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अब कुद्दूसी साहब, अब तो वो कह रहे हैं कि इकबाल अंसारी को बुला लिया है, अब तो सबको स्वागत करना चाहिए। छोटे मोटे बहुरत अड़ंगे डालने का कोई मतलब नहीं है, ना तो इससे आप लोगों की राजनीतिक रोटी गल रही है और ना ही कुछ और हो पा रहा है। लोग खामे और गालियां देंगे आप लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने विरोध नहीं किया है। किसने विरोध किया? मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी ने विरोध नहीं किया है। मैं तो राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, जो वो बता रहे हैं, राजनीतिक ओवैसी हो, दिग्विजय सिंह, मान जी की हम बहुत इज्जत करते हैं और हम कहेंगे जरा खामोशी से सुनिए हमें। आप भी मेरे बड़े भाई, मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ, सुनिए, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों की नहीं। ओवैसी की बात ना कीजिए, यहाँ ओवैसी की बात नहीं हो रही है। आज हम ये कहना चाहते हैं, मुस्लिम कौम की बात हो रही है। आए, स्वागत है उनका। जब आदेश हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, आपको मंदिर बनाने से कौन रोकता जी। लेकिन एक आप भाईचारा लेकर चलिए, जैसे राम सब लोग बुलाया तो है, लेके चले। बाबरी मस्जिद पचकार को बुलाया है, बाबरी मस्जिद पचकार को बुलाया है उस कार्यक्रम में, उन्होंने सहज स्वीकार किया। तो उसके बाद आपको तो आगे बढ़ना चाहिए ना। अभी आप शुरू हो जाएंगे बाबर की औलाद और फलाना और इनका कौन, बाबर कहाँ, बाबर हिस्ट्री थी, इसके नाते जमीन बाबर लेके नहीं आया था राजू जी महाराज, बाबर ने मेरे पार जमीन बाबर लेके नहीं आया था, आपने बाबर को यहाँ पैदा कर दिया और बाबर के खिलाफ लड़ने एक मोर्चा खोल दिया है। बाबर के नाम से हम लोगों की चिढ़ होती है, इसके नाते मैं कहता हूँ जो वो तो बीती बात लेंगे, वो बाबर के औलाद हैं। बीती बात आप बताएं इसकी। अब जाकर, अब तो बार बार यही बात हो रही है ना कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो भूमि पूजन हो रहा है, जैसे मैंने उनसे भी पूछा, इकबाल अंसारी को बुलाया जा रहा है। कांग्रेस को कहीं ये टीस है क्या कि उनके किसी नेता को बुलाया नहीं है? देखिए, ये टीस बिल्कुल नहीं। भगवान राम सबके हैं, सर्वत्र हैं, कड़ में शंकर है यहाँ पे पूरे देश में। हमारा देश शंकर का देश है। ना तो सोनिया गांधी जी ने अभी तक कुछ बोला, ना राहुल गांधी जी ने अभी तक कुछ बोला, ना प्रियंका गांधी जी ने अभी तक कुछ बोला। देखिए, ये तो जब राम जन्मभूमि का आया था तो एक ट्वीट तक नहीं किया था उन्होंने। स्वागत है कांग्रेस पार्टी में या नहीं है? स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। सुना क्यों नहीं हमने अभी तक उनसे कुछ?
आपने कमलनाथ का ट्वीट नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा? कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी जी अस्पताल में एडमिट थे, आपको पता चला हो तो? हाँ, पता था? नहीं पता था? मुझे बिल्कुल पता सोनिया था। गांधी जी उनके बीमार थे। सुपुत्र, बिल्कुल, उन्होंने सुपुत्र ने बधाई दे दिया है, सबने पूरा। कहाँ दिया भाई? मेरे पास ट्विटर पे नहीं आया अभी तक। राम मंदिर उसी दिन सबने बधाई दे दिया था। कांग्रेस में कंफ्यूजन है क्या इस वजह से आप लोग? राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए, राम मंदिर सोनिया के गांधी लिए का ट्वीट देश का हर दिखाइए, व्यक्ति, और तो कांग्रेस छोटे का हर छोटे मामले में व्यक्ति ट्वीट कर उसी देते दिन हैं। बधाई दे दिया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि इतना राम बड़ा मंदिर विषय बनेगा। है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि ये मामला खत्म, तो अब दिग्विजय सिंह जैसे अपने नेताओं को भूलिए कि इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से नहीं चल सकता कि मुंह में राम और बगल में राजनीति की छुरी लेकर आप लोग चलते रहेंगे। एक तरफ कहेंगे कि हम तो भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहेंगे राहु कालम है, ये मुहूर्त ठीक नहीं है। सब लोग बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो वहां पे जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं है। अंकित जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हम राम की समझा देंगे आप दिग्विजय सिंह राम को, वो भी भक्ति करते हैं। दिग्विजय सिंह को समझा देंगे आप। क्या मोदी जी समझेंगे कि दिग्विजय सिंह जो सवाल कर रहे हैं वो जायज है? मुहूर्त का कुछ होता है कि नहीं होता? सनातन धर्म है, घूम फिर के बाद ढाक के तीन बात, धर्म की आप पालन करते हैं, वापस जिसको कहते हैं कि राजनीति, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम अल्टीमेटली इज। वैदिक संस्कारों को मानते हैं कि नहीं? सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं? धन्यवाद, शुक्रिया। यू कैन टेक अवे you can start building the temple. The court can decide on the finality of this entire issue, but you can't take away the politics out of the Ram temple issue. The issue is being kept alive, and Digvijay Singh is right now using it for his political benefit. Make no mistake, the other side, the BJP, is also also would be using this because this is going to be one of the marquee event in the report card of the Prime Minister and also the Chief Minister of Uttar Pradesh when he faces election in 2022 and the national election in 2024. Thank you so much to all my guests for joining me this evening. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.